بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، السلام علیکم۔ آج کی ویڈیو میں ہم اس وقت کے حالات بیان کریں گے جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے علل اعلان فریضہ رسالت کا کام شروع کیا تو وہ کون سے اولین دشمن تھے جو آپ کے اس مشن کے مقابلے میں آئے اور ان کا کیا انجام ہوا۔ پچھلی ویڈیو میں ہم نے غار حرا میں نازل ہونے والی پہلی وحی کے مکمل حالات بیان کیے تھے، جس کے بعد اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 3 سال تک خفیہ طور پر تبلیغ رسالت کا فریضہ انجام دیا۔ 3 سال کے بعد اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو علل اعلان مشرکین مکہ کو توحید اور اسلام کا پیغام پہنچانے کا حکم دیا۔ یہ حکم سورہ حجر کی آیت نمبر 94 اور 95 میں یوں بیان ہوا ہے: آپ کو جس چیز کا حکم ملا ہے اس کا واشگاف الفاظ میں اعلان کریں اور مشرکین کی پرواہ نہ کریں، آپ کے واسطے ان تمسخر کرنے والوں سے نپٹنے کے لیے یقیناً ہم کافی ہیں۔ اسی دوران سورہ مبارکہ شورا کی ایک اور آیت آئی جس میں یہ طریقہ بتایا کہ کام کہاں سے شروع ہوگا۔ وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، اے میرے حبیب، پہلے اپنے قریبی رشتہ داروں اور گھر والوں کو ڈراؤ، پہلے ان تک یہ پیغام پہنچاؤ اور اس کے بعد سارے مکے تک اس پیغام کو پہنچانا۔ چنانچہ تاریخ اسلام کا وہ مشہور واقعہ پیش آیا جس کا نام ہے دعوت ذی العشیرہ۔ چنانچہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی علیہ السلام کو بلایا اور کہا کہ خاندان کے تمام بزرگوں اور جوانوں کو جا کے دعوت دو اور کل ہمیں دعوت کا انتظام کرنا ہے۔ حضرت علی علیہ السلام نے سوال کیا کہ دعوت کے لیے کیا سامان جمع کیا جائے۔ رسول کریم حکم دیتے ہیں کہ 1 ران بھیڑ یا بکری کی، 1 پیالہ دودھ اور 1 سا یعنی تقریباً 3 کلو گندم کی روٹیاں، یہ سامان کل کی دعوت کے لیے تیار کرو۔ اور یہ دعوت حضرت ابو طالب کے گھر میں ہوئی۔ کچھ روایات کے مطابق یہ دعوت شیب ابی طالب میں ہوئی تھی۔ اس دعوت میں خاندان بنو ہاشم کے 40 افراد شریک ہوئے اور کچھ عورتیں بھی تھیں۔ ان سب کو حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پیغام ملا۔ حضرت علی نے قاصد کے فرائض سر انجام دیے، ایک ایک کے گھر میں جاتے ہیں، یہ پیغام پہنچاتے ہیں۔ اگلا دن آیا، وقت مقررہ پر سب لوگ جمع ہوئے اور جیسے ہی ابو لہب کی نگاہ کھانے کے سامان پر پڑی تو پہلا اعتراض اس نے یہی کیا کہ کیا تم نے ہمیں دعوت کا نام دے کر یہاں بھوکا مارنے کے لیے بلایا ہے؟ یہ بکرے کی 1 ٹانگ تو ہم میں سے ہر ایک تن تنہا کھا جاتا ہے اور 40 آدمیوں کے لیے 1 ٹانگ، یہ کیسے ممکن ہے؟ رسول کریم نے کہا کہ ذرا صبر کریں اور انتظار کریں۔ تھوڑی دیر گزرتی ہے، حضرت علی علیہ السلام نے بکرے کی 1 ران کے ساتھ سالن تیار کیا۔ سالن کا پیالہ، دودھ کا پیالہ اور 3 کلو گندم کی روٹیوں کو لا کر رکھا گیا۔ رسول کریم نے فوراً کہا بسم اللہ وکلوا، اللہ کا نام لیجئے اور کھانا شروع کیجئے۔ ابو لہب کو خصوصاً اور باقی خاندان کے کچھ افراد کو یہ بات عمومی طور پر بہت ناگوار گزری۔ یہ کیا طریقہ ہے؟ یہ کون سا نام لیا گیا ہے؟ نہ لات کا نام، نہ منات کا، نہ عزا کا، نہ حبل کا۔ مگر کھانا سامنے آ چکا تھا، بھوک شدید تھی، اس لیے زیادہ کسی نے احتجاج نہ کیا اور کھانا شروع ہوا، مگر اس انداز سے کہ پیغمبر اسلام نے پورے کھانے پہ ہاتھ رکھا اور پھر اپنے خاندان والوں کے لیے اس کھانے کو پیش کیا اور بالخصوص ابو لہب سے کہا کہ پیٹ بھر کے کھانا ہے، کمی نہ رہنے پائے تمہارے کھانے میں۔ سب نے پیٹ بھر کے کھانا کھایا۔ اس کے بعد پیغمبر اسلام آگے بڑھے اور آخر میں پیغمبر نے اسی کھانے کو نوش فرمانا شروع کیا۔ ابو لہب یہ منظر دیکھتا ہے، انتہائی حیران ہو کے کہتا ہے کہ اے محمد، کیا تم نے کوئی جادو کر دیا ہے کہ اتنا قلیل کھانا 40 آدمیوں نے پیٹ بھر کے کھایا اور اس کے باوجود اتنا بچ گیا کہ تم بھی اسی کھانے کو استعمال کر رہے ہو؟ پھر پیغمبر اسلام کھانا ختم کر کے اس محفل کے برخاست ہونے کا اعلان کر دیتے ہیں۔ حیران و پریشان یہ لوگ چلے گئے، بلایا کیوں گیا تھا، واپس کیوں بھیجا جا رہا ہے؟
مگر جب حضرت علی علیہ السلام نے یہ سوال کیا تو پیغمبر اسلام نے جواب دیا کہ کیونکہ میری بات سننے سے پہلے ہی اس نے جادو کا لفظ استعمال کر دیا تھا، اس لیے اب اس کے بعد رسالت کا پیغام پہنچانا مناسب نہ تھا۔ کل میں اس پر سبقت کروں گا، اس سے پہلے کہ وہ کوئی بات کہے میں اپنے پیغام کو پیش کروں گا۔ جاؤ علی، ایک مرتبہ پھر کل کے لیے سب کو دعوت دو۔ اگلے دن پھر یہ دعوت دی گئی۔ اگلے دن بھی معمول کے مطابق یہی 3 چیزیں آئیں۔ بسم اللہ وقولو کہہ کر پیغمبر اسلام نے کھانا سب کے سامنے پیش کیا۔ سب نے کھانا کھایا۔ کل حیرت زیادہ تھی، آج حیرت کم ہوئی ہے، اس لیے آج ابو لہب نے وہ جملہ نہیں دہرایا۔ کھانا ختم ہوا، اس سے پہلے کہ ابو لہب کچھ کہے نبی کریم اپنے مقام پر بلند ہوئے اور اعلان کیا کہ اے بنی عبد المطلب، خاندان عبد المطلب سے تعلق رکھنے والوں، تم نے دیکھا کہ میں نے ابھی بنی اسرائیل کے نبی کا معجزہ تمہارے سامنے پیش کیا۔ مائدہ جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ایک معجزہ تھا، کھانے والوں کا پیٹ بھر جاتا تھا، دسترخوان چھوٹا ہونے کے باوجود بھرا رہتا تھا۔ یہ معجزہ میں نے پیش کیا اس لیے کہ میں اللہ کی جانب سے تمہارے پاس ایک پیغام کو لے کے آیا ہوں۔ پہلے یہ بتاؤ کہ کیا کبھی تم نے مجھے جھوٹ بولتا ہوا یا اپنے خلاف کوئی عمل کرتا ہوا پایا ہے؟ سب نے کہا نہیں، ہم نے آپ کو ہمیشہ اپنے خاندان کا خیر خواہ اور ہمدرد پایا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا کہ بس میرا یہ پیغام بھی اسی لیے ہے، اگر تم نے اس پیغام کو نہ مانا تو جہنم کی آگ سے تمہیں کوئی نہیں بچا سکتا، اور اگر اس پیغام کو مان لیا تو دنیا اور آخرت میں تمہارے لیے نجات اور نعمتیں ہیں۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا کہ یہ پیغام جو میں لایا ہوں اس کا نام اسلام ہے، ایک اللہ کو مانو اور میری رسالت کا اقرار کرو، اور یہ بھی سنو کہ کوئی نبی ایسا نہیں آیا کہ جب اس نے اپنی رسالت کو پیش کیا ہو تو اس کے ساتھ اس کا وزیر نہ ہو، اور میں وزیر تم ہی سے منتخب کرنا چاہتا ہوں۔ آج تم میں سے جو میرا ساتھ دینے کی بات کرے گا وہ میرا وزیر ہوگا، میرے فرضوں کو ادا کرے گا اور میرے وعدوں کو پورا کرے گا، اسے مجھ سے وہی نسبت ہو جائے گی جو موسیٰ علیہ السلام سے ہارون علیہ السلام کو نسبت تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کلام یہاں تک پہنچا۔ روایت یہ ہے کہ اس کلام کو سننے کے بعد ابو لہب تک بالکل خاموش ہے، سارا مجمع سر جھکائے بیٹھا ہے، فقط حضرت علی علیہ السلام اپنی جگہ پر کھڑے ہوئے۔ جس وقت پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس جبرائیل علیہ السلام غار حرا میں آئے تھے، حضرت علی کی عمر 9 یا 10 سال تھی۔ 3 سال بعد دعوت ذی العشیرہ ہوئی، اس اعتبار سے حضرت علی کی عمر اس وقت 12 یا 13 سال کے قریب ہے۔ حضرت علی علیہ السلام کھڑے ہو کر وعدہ نصرت کرتے ہیں۔ پیغمبر اسلام نے یہ کہہ کے بٹھا دیا، اے علی تمہارے بزرگ یہاں موجود ہیں، انتظار کرو، شاید ان میں سے کوئی میری مدد اور نصرت کا وعدہ کرے۔ روایت یہ ہے کہ سب خاموش رہے۔ دوبارہ پیغمبر اسلام نے یہ جملے دہرائے، دوبارہ سوائے حضرت علی کے کوئی کھڑا نہ ہوا۔ تیسری مرتبہ بھی جب صرف علی کھڑے ہوئے تو پیغمبر اسلام نے حضرت علی کو آگے بلایا، کندھے پہ ہاتھ رکھا۔ پہلے تو وہی 3 جملے کہے کہ تم میرے وزیر بھی ہو، میرے وصی بھی ہو، میرے جانشین بھی ہو۔ اس کے بعد سینے سے ملایا اور حضرت علی کو حکم دیا کہ وہ اپنا منہ کھول لیں۔ حضرت علی نے دہن مبارک کو پاس کیا، رسول کریم نے اپنا لعاب دہن حضرت علی کے منہ میں ڈالا اور پھر ایک مرتبہ سینے سے لگا کر علیحدہ کیا۔ یہ منظر دیکھ کر کہا لگا اور ابو لہب اپنی جگہ سے کھڑا ہوا اور یہ کہتا ہوا چلا کہ واہ محمد، تم نے اطاعت کا خوب صلہ دیا کہ تمہارا چھوٹا بھائی تمہاری اطاعت کرنے کی بات کر رہا ہے اور تم اس کے منہ میں تھوک رہے ہو۔ نبی کریم نے جواب دیا کہ میں نے علم و فہم اور حکمت و دانش اسے منتقل کی ہے اور اب یہ میرے تمام علوم کا وارث بن گیا ہے۔ بس ابو لہب غصے کی حالت میں یہ کہتا ہوا چلا کہ اے ابو طالب، تم ہی کو مبارک ہو اپنے بیٹے کی اطاعت کرنا۔ ابو لہب کو جاتا دیکھ کر خاندان بنو ہاشم کے سارے افراد چلے گئے۔ تاریخ یہ بتاتی ہے کہ اگلے دن ایک مرتبہ پھر پیغمبر اسلام صبح سویرے حضرت علی کو لے کر اپنے مکان سے باہر آتے ہیں، لیکن اب پیغمبر اسلام کا رخ خاندان بنی ہاشم کی جانب نہیں ہے، بلکہ پیغمبر سیدھے خانہ کعبہ کے قریب چلے اور خانہ کعبہ کے بالکل سامنے صفا پہاڑی ہے۔
पैगम्बर इस्लाम इस पहाड़ी पर आए। बाद रिवायतों में ये भी मिलता है कि कोहे अबू कुबैस पे आए, लेकिन ज्यादातर रिवायतों में सफा पहाड़ी का जिक्र है। ये दोनों पहाड़ियाँ बिल्कुल आमने सामने हैं। सफा पहाड़ी पर खड़े हुए चारों तरफ देखा और आवाज़ बुलंद कहा, वाह सबाहा, यानी ए सुबह के वक्त, वाह सबाहा 3 मरतबा ये आवाज़ दी। ये वाह सबाहा एक ऐसा जुमला था कि जो अरब में आपस में तयशुदा एक कोड वर्ड था कि जब कभी कोई इंतहाई अहम पैगाम देना होगा, जब कभी मक्के वालों की जिंदगी और मौत का मसला होगा। मसलन फर्ज कीजिए मक्का में आग लग जाए, या मक्का की जानिब कोई सैलाब आ रहा हो, या कोई दुश्मन हमला कर रहा हो, तो ये तय पाया था कि जिसे ये इत्तला मिले, ऐसी इत्तला कि जिससे मक्के वालों की जिंदगियां खतरे में हों, तो वो फौरन इस पहाड़ी पर खड़ा हो और वाह सबाहा कह के पुकारे। हर कबीला हाजिर हो जाएगा। जैसा कि जब अबरहा ने मक्का पर हमला किया था, तब भी वाह सबाहा की आवाज़ इस पहाड़ी से लगाई गई थी। पैगम्बर इस्लाम ने वाह सबाहा का नारा बुलंद किया। ये आवाज़ दूर दूर तक फैल गई। फिर पैगम्बर इस्लाम एक एक खानदान और कबीले का नाम भी लेते हैं, या बनी हाशिम, या बनी मखदूम, या बनी उमैया, और इन दोनों ऐलानात को सुनकर हर कबीला यहाँ पहुँच गया। जो कबीले वाले ना पहुँच सके, उन्होंने अपने एक एक नुमाइंदे को भेजा कि जाओ और सुन के आओ कि क्या बात हो रही है। यहाँ तक कि पूरा मक्का यहाँ जमा हो गया, इन मानों में कि हर कबीले का कम अज कम एक फर्द यहाँ मौजूद था। और पैगम्बर इस्लाम वाह सबाहा की आवाज़ बुलंद करने के बाद इत्मीनान के साथ पहाड़ी पर खड़े हुए हैं। जब सब के सब जमा हो गए और किसी ने सवाल किया, ऐ मोहम्मद, हमें किस लिए बुलाया है? पैगम्बर इस्लाम ने पहला सवाल ये किया कि ये बताओ, क्या तुम मेरे कलाम पर शक करते हो? अगर मैं कोई बात कहूँ तो क्या तुम उसे मानोगे या उसे झूठा समझोगे? सारे कबीलों ने एक साथ कहा कि हमने आपको हमेशा सादिक व अमीन पाया है, हम आपकी किसी बात के बारे में शक ही नहीं कर सकते कि ये गलत है। पैगम्बर इस्लाम ने दूसरा सवाल किया कि ये सामने वाली पहाड़ी देखो, कोहे सफा पर पैगंबर खड़े हैं और सामने दूसरी पहाड़ी कोहे अबू कुबैस है। पैगंबर ने कहा कि अगर मैं ये कहूँ कि इस पहाड़ी के पीछे दुश्मनों का एक लश्कर जमा हो चुका है जो तुम पर हमला करने वाला है, तो क्या मेरी बात मानोगे? सब ने कहा, बेशक हम आपकी बात मानेंगे, यकीन करेंगे। तीसरा सवाल पैगंबर इस्लाम ने किया, आखिर ये बात क्यों मानोगे? इसलिए कि हमने आज तक आपकी जुबान से कोई गलत बात नहीं सुनी। सबसे एतराफ़ करवाने के बाद पैगंबर इस्लाम ने कहा कि सुनो, मैं तुम्हें ये इत्तला देने के लिए आया हूँ कि जिस रास्ते पे तुम जा रहे हो, उस रास्ते में तुम्हारा अंजाम तबाही है। तुमने एक खुदा यानी अल्लाह ताला को छोड़कर अपने सैकड़ों खुदा मान लिए हैं, जिसके नतीजे में जहन्नुम और आखिरत का अज़ाब तुम्हारा इंतजार कर रहा है। क़ूलू ला इलाहा इल्लल्लाह तुफ़्लिहू, एक अल्लाह का कलमा पढ़ो तो तुम निजात पा जाओगे। और फिर पैगम्बर इस्लाम ने 3 वादे किए कि अगर तुम कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ लोगे तो सारे अरब के मालिक बन जाओगे और अजमी लोग तुम्हारे सामने दलील होकर रह जाएंगे। ये कहने की ज़रूरत क्यों पेश आई? इसलिए कि अरब एक ऐसा इलाका था कि जिसके आधे हिस्से पर ईरान वालों का कब्जा था और आधे हिस्से पर शाम वालों का कब्जा था, और इतना यतीम सा इलाका था कि जब जिसका दिल चाहता यहाँ आके हमला करके चला जाता। अबरहा का हमला इसकी गवाही दे रहा है। इसके अलावा भी हबशा के बादशाह ने कई मरतबा हमले किए, यमन के बादशाहों ने कई मरतबा हमले किए। तो उस वक्त अरब के लोगों का सबसे बड़ा मसला यही था कि ये जो बड़ी बड़ी ताकतें हैं जो जब दिल करता है आके हम पे हमला कर देती हैं, कौन हमें इनसे बचाने वाला है? तो पैगम्बर इस्लाम ने 3 वादे किए। मालाको बेहल अरब, पूरे अरब के तुम मालिक बन जाओगे, अजम के लोग दलील होकर रह जाएंगे, और इन सब से बढ़कर अगर तुम ईमान ले आए तो जो कुछ जन्नत में है वो सब तुम्हारा होगा, मगर क़ूलू ला इलाहा इल्लल्लाह तुफ़्लिहू, ला इलाहा इल्लल्लाह का कलमा पढ़ो और फलाह और निजात पाओ। जैसे ही पैगम्बर इस्लाम का खुतबा ख़त्म हुआ तो अबू लहब बोला कि क्या तुमने इस फजूल बात के लिए माअज़ल्लाह हमें जमा किया है? अबू लहब ये जुमला कह के वापस चलता है। खुद पैगम्बर इस्लाम के चचा ने जब ये बात कही तो सारे के सारे अरब मुतफर्रक हो गए। लेकिन अब एक बात आ गई इनके जहनों में
آج پورا دن ان کے درمیان یہی موضوع بحث رہا کہ آخر اس شخص نے اتنی بڑی بات کہہ کیسے دی، ہمارے بتوں کی تردید کیسے کر دی، اور ادھر مکے والے یہ باتیں کر رہے ہیں، ادھر جبریل امین علیہ السلام تبت یدا ابی لہب کی آیت لے کے آ رہے ہیں کہ جو ابو لہب نے رسول اسلام کے بارے میں کہا، پروردگار نے وہی جملے ابو لہب کے بارے میں استعمال کیے ہیں، ہلاکت میں جائیں ابو لہب کے دونوں ہاتھ اور وہ تباہ ہو جائے۔ تاریخ گواہ ہے کہ قرآن کا یہ وعدہ پورا ہوا اور ابو لہب کے ہاتھ ٹوٹے۔ بہرحال سارے مکے کے اندر ایک لہر سی دوڑ گئی حیرت کی کہ ہر گھر یہ تذکرہ ہو رہا ہے کہ آج اس نے اتنی ہمت کیسے کر لی کہ ہمارے سارے خداؤں کا انکار کر دیا۔ اور اس اعلان کے فوراً بعد اب پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا طریقہ یہ بنا لیا کہ اپنی نمازیں خانہ کعبہ میں ادا کرتے ہیں۔ عام مسلمانوں کو اجازت نہیں ہے، مگر خود پیغمبر اسلام کا یہ طریقہ ہے کہ پیغمبر اب اپنی نمازیں خانہ کعبہ میں ادا کرتے ہیں۔ اب وہ جو رکاوٹ تھی، جو حکم خدا تھا کہ چھپ کے تبلیغ کرو، وہ رکاوٹ ختم ہو گئی۔ پیغمبر اسلام کی نمازیں شروع ہو گئیں۔ سورہ الگ کی 6 سے آخری آیت تک کی آیتیں کوہ صفا کے اس اعلان کے بعد نازل ہوئیں۔ جب پیغمبر اسلام نے مسجد حرام میں نمازیں ادا کرنا شروع کر دیں تو سارے عرب غیظ و غضب کے عالم میں آ گئے، لیکن خصوصی طور پر ابو جہل کا غصہ اپنی انتہا پہ پہنچ گیا۔ ابو جہل وہ آدمی تھا کہ جو ہمیشہ یہ فرق رکھتا تھا عام عربوں سے کہ جو لباس وہ پہنے اس دن کسی عرب کو اجازت نہیں تھی کہ وہ لباس پہن لے۔ جس سواری پہ وہ سوار ہو کسی کو یہ اجازت نہیں تھی کہ اس کی سواری سے آگے اپنی سواری کو لے کے جائے، اور جب وہ حرم میں داخل ہو جائے تو کسی کو اجازت نہیں تھی اس سے پہلے اپنی عبادت کر لے۔ ابو جہل جو اپنے ذہن میں اپنا ایک تصور بنا کے بیٹھا ہے، وہ یہ منظر دیکھ کے انتہائی غیظ و غضب میں آ گیا کہ پیغمبر اسلام میرا کوئی خیال نہیں کرتے، میں کعبے میں داخل ہوتا ہوں تو وہ سجدے میں پڑے ہوتے ہیں۔ آخر ایک دن اس نے پیغمبر اسلام کو راستے میں روک لیا اور کہا، اے محمد، آئندہ میں تمہیں نہ دیکھوں اس طریقے سے عبادت کرتے ہوئے۔ آئندہ اگر تم نے اس طریقے سے عبادت کی تو لات و منات کی قسم میں وہیں پہ تمہیں سزا دوں گا۔ اور پیغمبر اسلام نے، جن کا طریقہ عام طور پر ایسا نہیں ہے، اتنی ہی سختی سے جواب دیا کہ اے ابو جہل، اگر تم نے میری نماز میں دخل ڈالا اور مجھے نماز سے روکا تو خود دیکھ لینا، اس کے بعد تو زندہ واپس نہیں جا سکے گا۔ ایک چیلنج ابو جہل دے رہا ہے اور ایک چیلنج نبی کریم۔ یہ واقعہ بہت سے لوگوں نے دیکھا تھا کیونکہ بازار کی بات تھی۔ اگلے دن جب ابو جہل خانہ کعبہ کے قریب پہنچا تو اس نے دیکھا کہ آج بھی رسول اسی طریقے سے نماز پڑھ رہے ہیں۔ وہ لوگ بھی اس وقت موجود تھے جن کے سامنے کل ابو جہل چیلنج دے چکا تھا۔ چنانچہ وہ غصے کی حالت میں آگے بڑھا اور قریب سے ایک پتھر اس نے اٹھایا اور یہ کہتا ہوا آگے بڑھا کہ اس پتھر سے میں اس کے سر کو زخمی کروں گا اور اپنا پاؤں اس کی گردن پہ رکھ کے اس کی گردن کو توڑوں گا۔ تکبر اور غرور کی حالت میں آگے بڑھ رہا ہے۔ سورہ الگ کی 19ویں آیت میں قرآن ابو جہل کو چیلنج کر رہا ہے، ابو جہل، کیا تجھے نہیں پتا کہ اللہ تیری حالت کو دیکھ رہا ہے؟ خبردار، اگر تو اپنی اس حرکت سے باز نہ آیا تو ہم تجھے بالوں کی مدد سے پکڑ کے کھینچیں گے اور آتش جہنم میں ڈالیں گے۔ چنانچہ تاریخ بتاتی ہے کہ ابو جہل آگے بڑھ رہا ہے، مگر جیسے ہی پیغمبر اسلام کے قریب پہنچا، لوگوں نے یہ منظر دیکھا کہ اس نے پتھر پھینکنے کے لیے اپنا ہاتھ اٹھایا اور یہ پتھر اس کی گردن سے چپک کے رہ گیا اور اس کا ہاتھ نیچے نہیں آ پا رہا ہے، اور انتہائی بھیانک چیخ اس کے منہ سے نکلی اور وہ واپس مڑا۔ بعض روایتوں میں ہے کہ جیسے ہی وہ واپس مڑا، یہ پتھر اس کی گردن سے زمین پر گر پڑا، اور بعض روایتوں میں ہے کہ ابو جہل اس حالت میں کہ ہاتھ پتھر سے اور پتھر گردن سے چپکا ہوا ہے، پیغمبر اسلام سے التجا کرتا ہے، اے محمد، مجھے بچاؤ۔ پیغمبر اسلام نے اشارہ کیا تو پتھر زمین پہ گرا اور ابو جہل پیٹ پھرا کے بھاگا۔ اب جو وہاں سے واپس آیا تو اس کے ساتھیوں اور مکہ کے سرداروں نے کہا کہ ابو جہل گئے تو تھے اتنے جاہو جلال کے ساتھ، واپس کیوں آ گئے؟ کہا، خدا کی قسم، جیسے ہی میں قریب پہنچا تو میں نے دیکھا کہ میرے اور اس کے درمیان بہت بڑی خندق ہے جو آگ سے بھری ہوئی ہے، اور اس آگ کے کنارے میں نے کچھ پرندوں کو دیکھا جن کے بڑے بڑے پر تھے اور انتہائی خوفناک ان کے پنجے تھے۔ چنانچہ میں وہاں سے واپس آیا اور پیغمبر اسلام نے بعد میں ارشاد فرمایا کہ اگر
अगर ये अबू जहल एक कदम आगे बढ़ता तो मलाइका उसके जिस्म के टुकड़े टुकड़े कर देते। अगर हम थोड़ा अगले जमाने में जाएं तो रिवायत ये बताती है कि 2 हिजरी को जंग बदर जब इख्तिताम को पहुंची तो अबू जहल का लाशा भी वहां पड़ा हुआ था दूसरे लाशों के साथ। चुनांचे उसका सर काटने से पहले बाद मुसलमानों ने आगे बढ़कर उसकी पेशानी के बाल पकड़े और बालों से उसे घसीटते हुए उसे लेके आगे बढ़े और उस गड्ढे में डाल दिया कि जहां मुशरिकीन के सारे लाशें डाले गए थे। बाद में पैगम्बर इस्लाम ने फिर उसके लाशे को मंगवा के उसका सर कटवाया तो खुद ब खुद कुरान की वो पेशीन गोई दुनिया की हद तक सही साबित हुई। अगर ये अपनी हरकत से नहीं रुकता तो हम इसको पेशानी से पकड़ के घसीटेंगे। ये तो खुद मुसलमानों को बाद में पता चला कि मुशरिकीन के इतने लाशों में एक ही तो हमने पेशानी से पकड़ के घसीटा है और ये वही अबू जहल निकला जिसके लिए कुरान ये हुक्म दे चुका है। और फिर जहन्नुम के बारे में कुरान की अगली आयत कि हम इसी तरह से इसको ले जाके जहन्नुम में डालेंगे। तो रिवायत ये बताती है कि अबू जहल सबसे पहला दुश्मन बन के आया, यानी पैगम्बर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर पहला हमला अबू जहल ने किया नमाज की वजह से, जिस वक्त पैगम्बर इस्लाम की नमाजें शुरू हुई। इसके फौरन बाद जो दूसरा शख्स पैगम्बर इस्लाम की मुखालफत पर मैदान में उतरा वो वलीद इब्ने मुगीरा था। वलीद इब्ने मुगीरा वो शख्स था जिसके बारे में कुरान कहता है इसका माल बहुत ज्यादा था, इसके बेटे कसरत से थे। उस वक्त के अरब के माहौल में यही 2 बातें सबसे ज्यादा अहम थी, जिसके पास माल भी ज्यादा हो और उसके बेटे भी ज्यादा हों। उससे ज्यादा मगरूर और मुतकब्बर आदमी कौन होगा। तो पैगम्बर इस्लाम ने दिल अशीरा की दावत की, कोहे सफा पर ऐलान किया। इसके फौरन बाद मस्जिद हराम में पहला हमला अबू जहल की तरफ से हुआ और फिर दूसरी मुखालफत वलीद इब्ने मुगीरा की जानिब से हुई। ये वलीद इब्ने मुगीरा अबू जहल का साथी बनकर पैगम्बर इस्लाम के खिलाफ मैदान में उतरता है और इसी के बारे में कुरान करीम की वो आयतें नाजिल हुई जो सूरह मुबारका कलम की आयतें हैं। ए रसूल, खबरदार उसकी बातों में ना आना जो बहुत ज्यादा कसम खाने वाला है, इंतहाई दलील आदमी है। इसके बाद कुरान ने कहा ये तो हर एक के ऐब की तलाश में लगा रहता है, चुगलखोरी इसकी आदत है, न खुद नेकी के रास्ते पर चलता है न दूसरों को चलने देता है, अपनी हद से तजावुज़ करने वाला है, गुनाहगार है, ये इंतहाई सख्त मिजाज है। और इन सब के बाद ये बदअसल है, हलाल की औलाद नहीं है। ये 9 सिफतें वलीद की बताई। इसके बाद कुरान ने कहा कि इसके पास दौलत और बेटे बहुत ज्यादा हैं, इसलिए जब इसके सामने हमारी आयतें पढ़ी जाती हैं तो ये कहता है क्या हमारे सामने पढ़ना शुरू कर दिया। ये तो पुराने लोगों के किस्से और कहानियाँ हैं, इसका हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं है। अब कुरान एक ऐलान कर रहा है, हम अनकरीब इसकी इसी ऊंची और लंबी नाक पे ज़रब लगाएंगे जिसको बचाने के लिए ये कहता था कि हम एक यतीम की बात मानकर अपनी नाक कैसे नीची करें। ये ऊंची नाक का हवाला दे रहा है, हम इसकी इसी नाक के ऊपर ज़रब लगाएंगे। तो रिवायात में मिलता है कि ये वो आदमी है कि जंग बदर में हिस्सा लेने गया था और वहाँ से भाग के आया था, मगर भागते भागते एक मुसलमान की तलवार ने इसके नाक को काट दिया था। उस मुसलमान को भी पता नहीं था कि मैं किस पे हमला कर रहा हूँ, मगर उसकी वही नाक कट गई। इसके बारे में एक बड़ी दिलचस्प बात भी मिलती है तारीख में कि वलीद इब्ने मुगीरा के बारे में जब पैगम्बर इस्लाम ने इन आयतों को हर जगह तिलावत करना शुरू कर दिया तो सारे मक्के के अंदर ये बातें फैल गईं। अब काफिर तक वलीद इब्ने मुगीरा को पसंद नहीं करते थे और कुरान की आयतें भी आ गईं जिसमें उसके एक एक ऐब को बयान कर दिया गया। अब उसके 9 ऐब कुरान ने बयान किए हैं। 8 ऐसी चीजें हैं जो हर मक्के वाले को पता थी, मगर नवी चीज कुरान ने एक नई बताई कि इसकी असल सही नहीं है, ये हलाल ज़्यादा नहीं है। खुद काफिरों का कलाम खुदा पर एतकाद देखिए कि सारे मक्के में ये बातें फैल रही हैं। लोग मदे ले लेकर इन आयतों की तिलावत कर रहे हैं, चाहे मुसलमान हों चाहे काफिर। वलीद इब्ने मुगीरा ने जब ये सुना तो गुस्से की हालत में तलवार लेकर अपनी बूढ़ी माँ पर चढ़ दौड़ा, तलवार को माँ की गर्दन पे रखा और कहा कि मुझे हकीकत बता, मेरे बाप के बारे में मुझे आगाह कर कि मेरा बाप कौन था। बूढ़ी माँ ने नंगी तलवार को अपनी गर्दन पे रखा देखकर सब सच बता दिया। तो वलीद इब्ने मुगीरा को भी यकीन आ गया था, तभी तो उसने जाकर माँ से पूछा। तो कुरान का ये एक मौजूदा भी है। उस वक्त अरब के माहौल में जब लोगों तक पहुंचा तो वो हैरान भी हुए क्योंकि ये बात फिर खुलती चली गई।
जब एक मरतबा मां की जुबान से ये बात निकली तो फिर निकलती ही चली गई। कुरान के इन अल्फाज की सच्चाई को देखकर एक बड़ा तबका इस्लाम की जानिब आने लगा। पैगम्बर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पहला टकराव अबू जहल से हुआ, दूसरा टकराव वलीद से हुआ। और अबू जहल से टकराव ज्यादा खतरनाक ना था, इसलिए कि अबू जहल फिर भी पैगम्बर इस्लाम से डरता था। जैसा कि हमने अपनी एक वीडियो में एक यतीम बच्चे का वाक़या बयान किया था, जिसे अबू जहल ने अपनी कफालत में लिया हुआ था। उसके माल पर कब्जा करने के बाद अबू जहल ने उसे अपने घर से निकाल दिया। यहाँ तक कि एक वक्त ऐसा आया कि उस बच्चे के पास खाने के लिए खाना और पहनने के लिए लिबास तक न रहा। मक्का के माहौल से वो नावाकिफ था और ये भी नहीं जानता था कि दादरसी के लिए किसके पास जाए। मक्का के कुछ लोगों को शरारत सूझी। उन्होंने सोचा कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और अबू जहल को आपस में छुड़ाते हैं। चुनाचे उन्होंने उस बच्चे से कहा कि उस शख्स के पास चले जाओ, वो तुम्हें तुम्हारा हक दिला देंगे। चुनाचे वो बच्चा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर गया और आपसे कहा कि अबू जहल से मेरा हक दिलवा दें। अबू जहल के दरवाजे पे आए, दस्तक दी। अबू जहल ने पूछा कौन? नबी करीम ने अपना नाम बताया। हैरान होकर अबू जहल बाहर आ गया कि ये मेरे पास कैसे आया। रसूल ने एक ही बात कही कि इस यतीम का पूरा हक दे दो। अबू जहल ये सुनता है, जो इतना सख्त दुश्मन है मगर अजीब हैबत और खौफ उसके दिल में है रसूल का। एक लफ्ज़ कहे बगैर घर में गया और यतीम का सारा माल लाकर उसके हवाले किया। रसूल करीम चले गए और वो लोग के जिन्होंने इस यतीम को बेचा था वो दौड़ के गए। अबू जहल, क्या बात है? ये तुम्हारी क्या हालत है? तुम तो इतने सख्त मुखालिफ थे और डर गए। जवाब दिया, तुम्हें क्या पता। जब उन्होंने ये जुमला कहा कि इस यतीम का हक दो, मुझे ऐसा लगा कि जैसे किसी ने दाएं और बाएं दोनों पहलुओं से मुझे दबाना शुरू कर दिया है और अगर मैं ये हक ना देता तो शायद उसी वक्त मर जाता। इसी तरह एक और वाक़या है कि पैगम्बर इस्लाम हरम में तशरीफ फरमा है। यमन से एक आदमी आया और आके कहता है कि मैं लुट गया। पैगम्बर इस्लाम ने पूछा कि क्या बात है? कहा कि अबू जहल ने मेरा सामान लिया है, पैसे देने से इनकार कर रहा है। रिवायत यह है कि पैगम्बर इस्लाम गए और जाकर कहा, अबू जहल, इसका हक इसको दो। उस वक्त भी उसकी जुबान से एक लफ्ज़ न निकला। और तीसरा वाक़या भी तारीख में है। अरब के एक कबीले बनु ज़ुबैर का एक आदमी खाना काबा के पर्दे को पकड़ के कह रहा है कि ऐ मक्के वालों, तुम्हारे यहाँ कौन तिजारत करने आए जबकि तुम आने वालों को लूट लेते हो। सरदारा ने मक्का ने सुना, पूछा क्या बात है? कहा कि क्या तुम्हें नहीं मालूम, मैं 3 बेहतरीन ऊँट लेकर आया था ताकि मक्का में किसी सरदार के हाथ उन्हें फरोख्त करूँ। यहाँ आने के बाद आमिर इब्ने हिशाम यानी अबू जहल आया। सबसे पहले मेरे ऊँट देखे, कहा कि मैं 50 दिरहम में खरीदता हूँ और ये कह के वापस चला गया। ऐ मक्के वालों, तुम्हें क्या हुआ है? ये एक ऊँट 1000 दिरहम का है, वो 50 दिरहम कीमत लगा के गया है। जैसा कि पहले बयान किया जा चुका है कि जो कपड़ा अबू जहल पहन ले वो कपड़ा उस दिन कोई नहीं पहनेगा। जिस सवारी पे वो बैठ जाए उसके आगे कोई नहीं निकलेगा। खाना काबा में आ जाए तो कोई उससे पहले इबादत नहीं करेगा। ऊँट की कीमत लगा के गया। अब ये कह रहा है कि मैं सारे मक्के में घूम के आ गया। 49 दिरहम तो देने वाले हैं मगर इससे ज्यादा 1 दिरहम भी कोई नहीं दे रहा। सब कहते हैं कि जब आमिर इब्ने हिशाम ने 50 कह दिए तो अब हम इससे ज्यादा नहीं कह सकते। ऐ मक्के वालों, ये कैसा जुल्म हो रहा है मुझ पर। बस इतना सुनना था कि सरदारा ने कुरैश ने कहा, वो बैठे हैं अबू जहल के दोस्त, उनसे जाकर कहो वो तुम्हें तुम्हारा हक दिलवा देंगे। और वो पैगम्बर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे। ये जाकर पैगम्बर इस्लाम से कहता है कि अपने दोस्त से मेरा हक दिलवाइए। और पैगम्बर फौरन खड़े हो गए, चलो मेरे साथ। अबू जहल के दरवाजे पे आए, दरवाजे पे दस्तक दी। अबू जहल निकल के आया और पूछा क्या बात है? पैगम्बर इस्लाम ने कहा कि मैं इसके तीनों ऊँट खरीद रहा हूँ, पूरी कीमत दे के खरीद रहा हूँ और तुम्हें बता के खरीद रहा हूँ। अगर पैगम्बर अबू जहल को बताए बगैर बाजार में जाकर ऊँट खरीद लेते तो ये भी अबू जहल के लिए बड़ी तौहीन थी। कहा ये कि इसके सामने आकर कहा कि 1000 दिरहम मैं कीमत लगा रहा हूँ, अगर तुम खरीदना चाहते हो तो इससे ज्यादा पैसे दो वरना ये ऊँट मैं ले जा रहा हूँ। और अबू जहल के जानने वालों को ये पता था कि अभी इसकी तलवार निकलेगी, यहाँ खून की नदियाँ बह जाएंगी।
अबू जहल की कीमत पर किसी ने कीमत लगाई, और इतनी बड़ी कीमत। लेकिन ये देख के सब हैरान हो गए। पैगम्बर इस्लाम इत्मीनान से आगे बढ़े। अबू जहल खामोश है। इसके तीनों ऊँट खरीदे, इसे इसकी पूरी कीमत दी और ऊँटों को लेकर अपने घर की जानिब बढ़ने लगे। सवाल किया दोस्तों ने जाकर, अबू जहल तुम्हारी ये क्या हालत है? कहा कि तुम्हें क्या पता, मैं देख रहा था 2 नेज़े बरदार अपना नेज़ा मेरे सीने पे रखे हुए हैं, और अगर मैं एक लफ्ज़ भी कहता तो ये नेज़े मेरे सीने में दाखिल हो जाते। तो अबू जहल पैगम्बर इस्लाम का सबसे बदतरीन दुश्मन होने के बावजूद पैगम्बर इस्लाम से मरऊफ भी है। उसकी हिम्मत नहीं पड़ती पैगम्बर इस्लाम के मुकाबले पर आने के लिए। चुनांचे उसकी मुखालफत एक हद में थी, मगर कुरैश के 6 आदमी ऐसे थे कि उन्होंने तो अपनी ज़िंदगी का मिशन बना लिया था। पैगम्बर इस्लाम घर से बाहर निकले तो उनके मुंह पे खड़े होकर उनको गालियां दें, उनके मुंह पे खाक डालें और उनके मुंह पर थूकें। इन 6 अशखास में वलीद इब्ने मुगीरा नंबर 1 है, आस इब्ने वाइल नंबर 2 है, असवद इब्ने मुतरिब नंबर 3, असवद इब्ने अब्द यगूस नंबर 4, हारिस इब्ने तलातला नंबर 5 और हारिस इब्ने कैस नंबर 6। ये 6 आदमी हैं कि जिनका ये तरीका था कि दुश्मनी में इंतहाई घटिया सतह पे उतर आए। थूकना, मट्टी फेंकना, पैगम्बर इस्लाम के मुंह पे खड़े होकर रोजाना गालियाँ सुनाना। पैगम्बर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खामोश हैं और सब्र कर रहे हैं, मगर परवरदिगारे आलम ने पैगम्बर इस्लाम को रिसालत का हुक्म दिया तो एक वादा भी किया था, ऐ रसूल खुल के तबलीग करो, मुशरिकीन को छोड़ दो जो तुम्हारा मजाक उड़ाते हैं, हम उनके लिए काफ़ी हैं। चुनांचे तारीख बताती है कि जैसे ही उनके मज़ालिम बढ़ गए वैसे ही जिब्रील अमीन अलैहिस्सलाम पैगम्बर इस्लाम पे नाज़िल हुए और पैगम्बर इस्लाम से आके कहते हैं, बताइए कि कौन है आपकी तौहीन करने वाला। रहमत लिल आलमीन पैगम्बर खामोश हैं, लेकिन जिब्राईल अलैहिस्सलाम उस वक्त आए जब पैगम्बर इस्लाम बाजार से गुजर रहे थे। जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने गुजरने वाले वलीद इब्ने मुगीरा को देखा, फकत इतना कहा कि क्या ये भी है आपका मजाक उड़ाने वालों में से? आप सिर्फ इशारा करें। पैगम्बर इस्लाम ने सर झुका दिया, यानी हाँ का इशारा किया, जुबान से कुछ नहीं कहा। और जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने एक मरतबा अपनी उंगली से इशारा किया। इस इशारे का नतीजा ये निकला कि जब वलीद इब्ने मुगीरा आगे बढ़ा, चलते चलते वो एक तीर बनाने वाले के पास से गुजरा, क्योंकि ये एक आम पेशा था अरब का। मक्का में दुकानें खुली हुई होती थी तीर बनाने वालों की। वो तीर बनाने वाला लकड़ी से तीर बना रहा है और लकड़ी के छिलके जमीन के ऊपर गिरे हुए हैं। परवरदिगारे आलम जो जितना ज्यादा दुश्मनी में आगे बढ़ता है उसको उतनी ही जिल्लत की मौत देता है। जैसे ही वो आगे बढ़ा तो वो जो लकड़ी से तीर बन रहे थे उस लकड़ी का छिलका जमीन पे पड़ा हुआ था। वलीद इब्ने मुगीरा का पाँव उस पे पड़ा और उसके पाँव से खून निकल आया। खून जारी हो गया और वो छिलका अटका हुआ है। अब वलीद इब्ने मुगीरा चाहे तो जो कर उसे निकाल ले, मगर तकब्बुर और गुरूर की वजह से अवाम में किसी के सामने कभी नहीं झुका। यहाँ तक कि पाँव जख्मी है और पाँव से लकड़ी का वो टुकड़ा निकालना भी उसे खिलाफे शान लग रहा है। चुनांचे नीचे नहीं झुका, सारे काम निपटा के इसी तरह से चलकर अपने घर तक आया। खून बहता जा रहा है, आके अपने बिस्तर पे लेट गया। उसके करीब उसकी बेटी का बिस्तर था। थोड़ी देर के बाद लड़की घबरा के खड़ी हो गई और चीख के कहती है कि आज मैं कनीज को सख्त तरीन सजा दूंगी। मैंने उससे कहा था जब वो पानी निकालने आई थी कि पानी की मश्क से पानी निकालने के बाद इसको मजबूती से बंद कर देना, मगर ऐसा लग रहा है कि वो इसको खुला छोड़ के चली गई। मेरा सारा बिस्तर गीला हो रहा है। वलीद इब्ने मुगीरा ने सुना तो कहा, बेटी ये पानी की मश्क नहीं खुली, ये तुम्हारे बाप के जिस्म से निकलने वाला खून है जिसके आखिरी कतरे हैं। बेटी ने सुना तो घबरा के चिराग रोशन किया तो वाकईन ये मंजर देखा। इतना खून पाँव से निकल गया कि ऐसा लग रहा है कि जैसे पानी की मश्क बह गई हो। कहा, जाके मेरे बेटों को बुला के लाओ। बेटों को बुलाया गया, आखिरी वसीयत की और जहन्नुम वासिल हो गया। दूसरा आदमी आस इब्ने वाइल था जो इब्तिदाई अहद इस्लामी में पैगम्बर इस्लाम की मुखालफत करता था। जिब्रील अमीन पैगम्बर इस्लाम के पास खड़े हैं, मक्के का बड़ा बाजार है। आस इब्ने वाइल गुजरा, इशारा किया, क्या ये भी आपका मजाक उड़ाने वालों में से है? पैगम्बर इस्लाम ने सर को झुकाकर हाँ जवाब दिया। जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने उंगली से इशारा किया। ये आस इब्ने वाइल चल रहा है। चलते चलते एक पहाड़ी पर चढ़ा और एक कांटा इसके पैर में चुभा। मामूली सा कांटा है
मगर इतनी तकलीफ उसे पहुंचाई कि एक मरतबा चीख कर कहता है, आए मोहम्मद के खुदा ने मुझे मार दिया। इसी डर से ये जहन्नुम वासिल हो गया। पैगम्बर इस्लाम वहीं खड़े हैं कि इतने में तीसरा दुश्मन असवद इब्ने मुत्तलिब वहां से गुजरा। जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने उसके बारे में पूछा तो पैगम्बर इस्लाम ने सर के इशारे से हाँ में जवाब दिया। जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने उंगली का इशारा किया। रिवायत यह है कि ये थोड़ी दूर गया था कि अंधा हो गया और अंधा होने के बाद करीब में जो दीवार थी उसे अपना सर टकराने लगा। इतनी जोर से टकराता है कि खोपड़ी टूटने के करीब है। उसका गुलाम भी साथ है। ये उसे कहता है कि मुझे पकड़ो, कोई आदमी मेरे सर को पकड़ पकड़ कर दीवार से मार रहा है, उसे हटाओ। और गुलाम पलट के कहता है कि आप किसकी बात कर रहे हैं, मैं किसे रोकूं, मैं तो आप ही को देख रहा हूं कि आप अपना सर दीवार पे मार रहे हैं। वो तो अंधा हो चुका है, ये समझ रहा है कोई मेरे सर को पकड़ पकड़ के दीवार पे मार रहा है, तो बार बार कहता है, गुलाम इस आदमी को हटाओ जिसने मेरा सर पकड़ा हुआ है। गुलाम चारों तरफ देखता है, फिर वही कहता है कि आप ही अपना सर मार रहे हैं, मैं किसको हाथ लगाऊं। चुनाचे ये अपना सर दीवार से टकरा टकरा के जहन्नुम वासिल हो गया। रिवायत बताती है कि पैगम्बर इस्लाम खड़े हैं। जिब्रील अमीन अलैहिस्सलाम ने चौथे आदमी की तरफ इशारा किया जो असवद इब्ने अब्द यऊस है, इंतहाई जालिम आदमी। इसकी एक कनीज मुसलमान हुई थी, उस पर इसने बेइंतहा मज़ालिम किए। जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने इशारा किया, क्या ये भी है आपका मजाक उड़ाने वालों में? पैगम्बर इस्लाम ने इशारा किया, हाँ, मगर ये भी कहा कि मैंने इसके लिए दुआ मांगी थी कि ये अपने बेटे की खबर सुन के मरे, इसलिए इसकी मौत अभी नहीं आना चाहिए। रिवायत यह है कि जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने करीब के दरख्त का एक पत्ता तोड़ा और वो पत्ता उसकी आंखों पे मारा और ये असवद इब्ने अब्द यऊस अंधा हो गया, मगर मरा नहीं। बाकी सब तो मर गए थे, ये मरा नहीं, अंधा हो गया और बेकार हो गया। यहाँ तक कि जंग बदर में इसका बेटा मारा गया। जब ये खबर मक्के आई तो उस वक्त इसने अपने बेटे के गम में खुदकुशी कर ली। इसके बाद पांचवें आदमी हारिस इब्ने तलातला की तरफ जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने इशारा किया कि ये भी है आपका इस्तेहज़ा करने वालों में? पैगम्बर इस्लाम ने इशारा किया। जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने पलटकर उसकी तरफ इशारा किया। नतीजा ये निकला कि जब ये आदमी आगे बढ़ा, थोड़ी दूर गया होगा तो उसके चेहरे का रंग स्याह पड़ गया, उसकी शक्लो सूरत बदल गई और नतीजा ये निकला कि जब ये अपने घर में दाखिल हुआ और जाके अपने बिस्तर पे बैठ गया, घर वालों की तो जान निकल गई। ये कौन आदमी आके बैठ गया है? अगर हारिस आ गया तो वो तो हमें मार डालेगा, वो तो अपने बेटे को नहीं बैठने देता, ये तुमने किस आदमी को बिठा दिया? सारे घर वाले एकदम उस पे टूट पड़े और उसकी पिटाई शुरू कर दी। अब उसकी शक्ल बदली है, मजाज तो नहीं बदला। मार खाने के बाद उसे और गुस्सा आया कि इनकी हिम्मत कैसे हुई कि मेरे ऊपर हाथ उठा रहे हैं, और उसने उनको बुरा भला और गालियां देना शुरू की। ये उन्होंने सुना तो और डर शुरू हो गया कि अगर उसको पता चल गया कि जो आदमी मेरे बिस्तर पे आके बैठा था उस आदमी ने गालियां भी दी हैं और हम खामोश रहे तो और हमें सजा मिलेगी। इतना मारा कि अपने घर वालों के हाथों ये मारा गया और जहन्नुम वासिल हो गया। परवरदिगारे आलम इस अंदाज की मौत दे रहा है। कितनी जिल्लत की बात कि कल जो घर वाले उसकी आंख के इशारे से डरते थे और आज उसी को मार मार के खत्म कर रहे हैं। इससे ज्यादा इसकी जिल्लत क्या होगी। छठा आदमी हारिस इब्ने कैस था। जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने इशारा किया, क्या ये भी उनमें है? पैगम्बर इस्लाम ने फकत सर हिला दिया। चनाचे वो जैसे ही आगे बढ़ा, पहली दुकान से उसने मछली खरीद के खाई। वो मछली जहरीली मछली बन गई, जिसके नतीजे में उसका पेट फूला और इतना फूला कि उसका पेट फटा, और इसके नतीजे में ये सब के सामने इस जिल्लत की मौत मरा जिस तरह कुत्ते का पेट फट जाता है सड़ने के बाद। चुनाचे इस तरह पैगम्बर इस्लाम के इन इब्तदाई दुश्मनों की अपनी कौम, अपने कबीले और अपने गुलामों के सामने इस तरह जिल्लत के साथ अमवात वाक़े हुई। उम्मीद करता हूँ कि आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें और मज़ीद इस तरह की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।